Verses 41 we'll read from the Passion Translation. भजन 78 उसकी 41वीं आयत पास्टर पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे, मैं उसका अनुवाद करूंगा। Say, thank you, Father, बोले धन्यवाद पिता that my ears are open कि मेरे कान खुले हैं to hear your word. आपके वचन को सुनने के लिए। Psalm 78:41, it says, again and again they limited God, preventing him from blessing them. और यहाँ लिखा है कि बार बार वो परमेश्वर को रोकते रहे, उसको सीमित करते रहे कि उनको वो आशीष ना दे पाए। Do you know what was the duration of this again and again? आप जानते हैं इस बार बार की कितना लंबा समय था इस बार बार में? 40 years. 40 साल। They prevented God to bless them for 40 years. वो 40 साल तक परमेश्वर को रोकते रहे कि वो उनको आशीष ना दे पाए। Well, there goes that theology down the drain which says if God wants to do anything, he will do it. तो यहाँ वो शिक्षा गड्ढे में जाती है कि जो परमेश्वर को करना है वो करेगा। That's why so many people say, God is blessing him, God is blessing him. Somehow I feel like he bypasses me. इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर उसको भी आशीषित कर रहा है और उसको भी आशीषित कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे नजरअंदाज कर रहा है। You are preventing him from blessing you. आप उसको रोक रहे हैं आपको आशीष देने से। With these guys it was 40 years. इन लोगों ने 40 साल लगा दिया परमेश्वर को रोकते रोकते। Again and again and again they prevented God from blessing them. वो परमेश्वर को रोकते रहे कि वो उनको आशीषित ना कर पाए। Wow. They limited God. उन्होंने परमेश्वर को सीमित कर दिया। And I'm telling you, everywhere I have gone to preach the gospel and whenever I have asked this question, can you limit God? Everybody says, no! और मैं जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार करने गया और मैंने सवाल पूछा क्या आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, तो सबने चिल्लाकर कहा नहीं। And then I say, yes! और मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। Right? Because now it does not depend upon God, it depends upon you. क्योंकि अब आपके जीवन की आशीष परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, आप पर निर्भर है। Again and again they limited God, preventing him from blessing them. बार बार वो परमेश्वर को सीमित करते रहे, उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष ना दे पाए। Continually they turned back from him and provoked the Holy One of Israel. निरंतर वो उसकी ओर अपनी पीठ मोड़ते रहे और उस पवित्र परमेश्वर को नाराज करते रहे। Think about that. If you have children and you want to do something for them but they keep preventing. सोचिए अगर आपके बच्चे हों और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो और वो आपको करना ही ना दे। And you see they are in a miserable condition. और आप देख रहे हैं कि वो समस्या में हैं, हाल खराब है उनका। But you want to do so much for them, आप but they इतना कुछ करना चाहते हो लेकिन they don't allow you. वो आपको अनुमति ही नहीं And देते। it broke God's heart. और इससे परमेश्वर का दिल टूटा। Right? All right, so please be seated. अब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you alive? क्या आप जीवित हैं? Is this a house where people love the word of God? क्या ये वो घर है जहां लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? You know, if you can discern, the main thing in this testimony is not Pastor Ankit, because he does nothing. It's the word of God that changed their life. अगर आप सही से परखना सीख गए तो इस गवाही में मुख्य जो विषय है वो पास्टर अंकित नहीं है, परमेश्वर का वचन है जो सब कुछ करता है। It's the word of God. परमेश्वर का वचन है जो करता है। Amen. I stand here to teach you the word. मैं यहाँ पर आपको वचन सिखाने के लिए खड़ा हूँ। And if you can receive that word, और अगर आप वो वचन को ग्रहण कर लोगे, apply it in your life, अपनी जिंदगी में उसको लागू करोगे, you're going to have the same fruits. तो आपको वही फल मिलेगा। Amen. आमेन। All right, so remember the two rules? दो नियम याद हैं? Yeah. So I want to teach today, grace provides, faith speaks. मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ, अनुग्रह आपके लिए प्रबंध करता है, विश्वास बोलता है। Grace provides, faith speaks. अनुग्रह प्रबंध करता है, विश्वास बोलता है। You know, the body of Christ is basically divided into two groups. मसीह की देह दो गुटों में बटी हुई है। One who completely stress so much on the grace of God. पहला जो बहुत ज्यादा प्रभावित है परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके बारे में बात करती You है। know, they emphasize God's grace. वो परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व बताते हैं। And then the second part, those who emphasize faith. और दूसरा गुट जो विश्वास पर महत्व बताते हैं। So one group is preaching that everything is up to God.
सो एक ग्रुप ये कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर है, He's almighty, वो सर्वशक्तिमान the great है, I am. वो महान मैं हूँ बोलता है अपने आप को, जो Whatever he wanna do, he जो- will do it. जो वो करना चाहेगा वही वो करेगा. Right? So ठीक है. people in this camp सो इस कैंप में जो लोग हैं, believe everything that happens in their life, it is God doing it. उनकी जिंदगी में जो कुछ घटना घटती है वो ये मानते हैं कि परमेश्वर के कारण घटी है. When they are sick, they believe God allowed that sickness to teach me something. जब वो बीमार होते हैं तो कहते हैं परमेश्वर ने इस बीमारी की अनुमति उनकी जिंदगी में दी ताकि वो उनको कुछ सिखा सके. Because they see God as a puppet master. You know, He's controlling every move in their life. क्योंकि वो देखते हैं परमेश्वर को कठपुतली चलाने वाले की तरह कि वो सब बातों को अपने वश में किया हुआ है. That kind of believing will kill you. इस तरह का विश्वास करना आपको जान से मार देगा. And many have died और बहुत से मर भी गए हैं because they received a sickness as a gift from God. क्योंकि उन्होंने एक बीमारी को परमेश्वर की ओर से तोहफा समझ के गले लगा लिया. I met somebody, he had a blood disorder, मैं किसी से मिला, उसको लहू की बीमारी थी, and I said, और मैंने कहा let me pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना. He said, no, 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 no. उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, God gave me this परमेश्वर disorder. ने मुझे दिया ये बीमारी. It's like, wow. I don't know if he's alive today or not. मुझे नहीं पता आज वो जिंदा है या नहीं. Such believing will kill you, ऐसी इस रीति से मानना आपको मार देगा. right? And then there is another group, फिर एक और ग्रुप है, those who completely emphasize on faith. It's all about you. वो जो पूरा महत्व देते हैं विश्वास के ऊपर के आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है आपके साथ. I prayed and I changed, I twisted, I arm twisted God. मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर की बाजू मरोड़ कर मैं रिजल्ट ले आया. I'll fast for 40 days and I'll make God do what I want him to do. मैं 40 दिन भूख हड़ताल करूंगा और परमेश्वर को वो करने पर मजबूर कर दूंगा जो मैं चाहता हूं वो करे. Right? And both of these camps are deadly if you will not see grace along with faith. और ये दोनों खेमे, दोनों कैंप जानलेवा हैं अगर आप अनुग्रह और विश्वास दोनों को साथ में देखना ना सीखे. Amen? आमेन. Grace alone does not save you. अनुग्रह केवल आपको नहीं बचाता. Some people say, oh, it's just grace alone. परमेश्वर के लोग कहते हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचे हैं. They hear, now there are famous teachings on YouTube. They'll hear a grace teaching and then they're like, oh, it's God's grace, done. और YouTube पे कई बार लोग परमेश्वर के अनुग्रह की शिक्षा सुनते हैं और कहते हैं बस हो गया परमेश्वर. And they'll go into one extreme. और वो एक छोर की ओर भाग जाते They'll हैं. say, oh, it's just God, it's just grace. अरे सिर्फ अनुग्रह ही काफी है. No, नहीं. grace alone does not save you. सिर्फ अनुग्रह के कारण आप नहीं बचते. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, पड़ोसी को कहो, पड़ोसी, प्यारे पड़ोसी, बिल्कुल grace नहीं. alone does not save you. अकेला अनुग्रह आपको नहीं बचाता. Let's see a scripture, Ephesians 2:8. इफिसियों 2:8 देखते हैं. Okay? All right, Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. Say by grace, बोले अनुग्रह से, through faith. विश्वास के द्वारा. By grace, अनुग्रह से, through faith. विश्वास के द्वारा. By grace means grace is the source. अनुग्रह से मतलब अनुग्रह जो है वो सोता है. Your salvation is provided by grace. आपका उद्धार अनुग्रह के माध्यम से आप तक आया है. Amen? Amen. Grace is God's part. अनुग्रह परमेश्वर की ओर से किया गया काम है. And you play no part in grace. और अनुग्रह में आपका कोई लेना देना नहीं है. You cannot add anything to God's grace. आप परमेश्वर के अनुग्रह में कुछ जोड़ नहीं सकते. You cannot earn God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह को आप कमा नहीं सकते. Before you were even born, यहाँ तक कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, God moved by His grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण और पहले से ही कर चुका है सब And कुछ. grace is nothing but the goodness of God. और अनुग्रह और कुछ नहीं, केवल परमेश्वर की भलाई है. Right? है ना? God moves by His grace. He पर- moves by His grace. He does things in our life because He is good. परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा सब कुछ करता है. वो इसीलिए हमारी जिंदगी में सब कुछ करता है क्योंकि वो भला है. Amen? आमेन. However, लेकिन we receive salvation through faith. हम उद्धार जो ग्रहण करते हैं वो विश्वास करने के द्वारा करते हैं. And this word through comes from the Greek word dia, D-I-A.
और द्वारा जो शब्द है वो यूनानी के दिया शब्द से आता है। It means medium or a channel through which grace flows. उसका अर्थ है माध्यम या रास्ता जिसके द्वारा अनुग्रह बहता है। That means, hear carefully, सुनिए ध्यान से, if there is no faith, अगर विश्वास नहीं शामिल किया grace cannot flow. तो अनुग्रह बह नहीं पाएगा। I'll say it again. दोबारा कहता हूँ, If there is no faith, अगर विश्वास नहीं इस्तेमाल किया grace cannot flow. तो अनुग्रह पहुंच नहीं पाएगा। Let me give you another example. एक और उदाहरण देता हूँ। Take grace as electricity. आप अनुग्रह को बिजली समझ लीजिए। Right? There is this powerhouse where there are a million kilowatt of energy, this electricity. एक बहुत बड़ा बिजली घर है, पावर हाउस है, जिसमें जहाँ से कई मिलियन किलोवाट ऊर्जा आती है। Right? And if maybe you are in your house but it's so cold, and that electricity can warm you, can cook food for you, can do things for you. However, for that electricity to enter in your house, you need wires, cables. और आप अपने घर में हैं और आप बहुत ठंडा महसूस कर रहे हैं या भूखा महसूस कर रहे हैं, तो वो बिजली आपके लिए गर्मी प्रदान कर सकती है या फिर आपके लिए खाना बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन वो बिजली आपके घर तक पहुंचे उसके लिए आपको तार चाहिए बिजली का। Faith is that medium, it's that wire through which grace flows. विश्वास वो बिजली का तार है जिसके द्वारा वो बिजली आप तक पहुंच सकती है। Amen? आमीन। So grace alone won't save you. अनुग्रह अकेले से आप नहीं बच सकते। Are you hearing what I'm saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। Because let's go back to Titus 2:11 and then we'll come back to this हम scripture. तीतुस 2:11 पर जाते हैं, फिर यहाँ वापस आएंगे। Right? If we go there, then you'll understand. अगर गए तो समझेंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। For the grace of God that brings salvation has appeared to how many men? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। Amen? आमीन। So grace of God has, not that it will, grace of God has appeared to how many men? All men. So परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा नहीं लिखा है, प्रकट हो चुका है सब मनुष्यों के लिए। Amen? Amen. But let me ask you a question. Are all saved? Are all saved? No. पर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सब ने उद्धार पा लिया है पृथ्वी पर? नहीं। That means the same grace that is available to you, the same grace was available to Adolf Hitler, the same grace was available to Osama bin Laden, the same grace was available to the most wretched and in a way murderer on this earth. So इसका अर्थ ये है जो अनुग्रह आपने प्राप्त किया है वही अनुग्रह एडोल्फ हिटलर, ओसामा बिन लादेन या दुनिया के सबसे घिनौने अपराधी के लिए भी है। Right? God's grace is extended towards everyone. परमेश्वर का अनुग्रह हर एक के लिए पहुंच गया है। But not everyone is saved. लेकिन सब ने उसको ग्रहण नहीं किया, सब ने उद्धार नहीं पाया। Because the way you receive salvation is by faith. क्योंकि जो तरीका है, जो माध्यम है जिससे आप अनुग्रह को प्राप्त करते हैं वो है विश्वास। Amen? Amen. Even though grace was there for them, but because they did not put their faith, they were not able to receive what God had for them. हालांकि अनुग्रह परमेश्वर की ओर से उनके लिए आ गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उद्धार नहीं पाए। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Let's go back to Ephesians 2:8. अब इफिसियों 2:8 पर चलते हैं। Say, by grace, through faith. अनुग्रह Amen. से विश्वास के द्वारा। So grace alone cannot save you. अनुग्रह अकेला जो है आपको नहीं बचाएगा। In the same manner, faith alone cannot save you. ठीक वैसे ही केवल विश्वास आपको नहीं बचा सकता। There are people in the mountains पहाड़ पर लोग हैं, meditating, मनन कर रहे हैं, thinking they will get salvation by their works. तपस्या कर रहे हैं इस उम्मीद में कि अपने कामों के द्वारा उद्धार कमा लेंगे। Faith cannot receive until grace has provided. विश्वास तब तक कुछ हासिल नहीं करेगा जब तक अनुग्रह ने वो मुफ्त में दे ना दिया हो। Grace has to come first. अनुग्रह पहले होता है, पहले Faith आना cannot जरूरी है। come first. विश्वास पहले नहीं हो सकता। Are you guys with me? All right. So by grace you have been saved through faith. क्योंकि अनुग्रह के द्वारा तुम विश्वास से बचाए गए हो। And that not of yourselves, it is the gift of God. और वो तुमने खुद नहीं किया लेकिन परमेश्वर का तोहफा है। So salvation is a gift of God. उद्धार परमेश्वर का तोहफा है। Amen? आमीन।
And let me give you a good example. एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। Okay? For example, Danny, come here. Or for example, I want to give him a gift. Salvation is a gift, right? उदाहरण के लिए मैं भाई डैनी को एक तोहफा देना चाहता हूँ। उद्धार एक तोहफा है ना? Okay, it's just an example. उदाहरण है। Okay? So for example, if this is my watch, मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरी घड़ी है and I want to gift this watch to him, और मैं एक घड़ी इनको तोहफे में देना चाहता हूँ। right? So I extended this gift towards him. तो मैंने ये तोहफा उनके लिए बढ़ाया। And he said, no, 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 no. वो कहते नहीं मुझे I don't want it. अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। I said, take it. मैंने कहा ले लो। You act as if you don't want it. I was like, take the watch. ले लो Take the watch. अरे ले लो भाई। You should take the watch. अरे तुम्हें लेनी चाहिए। Right? And he says, no. कहते नहीं। So even though I was giving it, So हालांकि मैं तो दे रहा था वो घड़ी, he didn't receive it. उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, है ना? Will he have the gift? क्या उनके पास वो तोहफा होगा फिर? No. नहीं। Because it's not just a matter of God giving, it's a matter of us receiving. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर Yeah, दे देगा मुद्दा नहीं है, हम ग्रहण करेंगे मुद्दा है साथ में। Amen? Amen? Because all throughout religion has taught us that, or even the worldly system has taught you, nothing comes for free. क्योंकि धर्म ने और यहाँ तक कि जो दुनिया का सिस्टम है उसने भी ये सिखाया है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता भाई। You'll have to earn it. आपको कमाना पड़ेगा। So people say, I'm going to earn my तो salvation. लोग कहते हैं मैं अपना उद्धार कमा के रहूंगा, And they're trying to earn it in different ways. और वो अलग अलग रास्तों से कमाने की कोशिश कर रहे हैं And they'll be disappointed. और निराश हो जाएंगे। That kind of teaching will put you in a legalistic slavery. उस तरह की शिक्षा आपको एक कानूनी दास बना देगी। See, if you are in just grace alone camp, it is going to make you a passive believer. सिर्फ अनुग्रह ही है, ऐसा करने से हम कुछ ना करने वाले विश्वासी बन You'll जाएंगे। say, whatever God wants to do, He will do it. आप कहेंगे जो परमेश्वर को करना है वो करता Because रहेगा, it's just God. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही करता है जो करता है। Or if you say, oh, it's all about faith, I'm going to fast, I'm going to pray, या I'm आप going to कहेंगे confess. विश्वास या कामों के द्वारा मैं करूंगा, तो मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। Both are deadly. दोनों ही जानलेवा हैं। Amen? Think about that, because if it was just grace alone, then every believer should have the same result in the church. इसके बारे में सोच के देखिए, अगर सिर्फ अनुग्रह से ही सब कुछ संभव होता तो कलीसिया आने वाला हर एक विश्वासी वैसा ही जीवन जी रहा होता, सबके साथ एक ही तरह की चीजें हो रही होती। Otherwise, God is a partial God because He does for some and He doesn't do it for another. अगर ऐसा नहीं है तो फिर परमेश्वर पक्षपाती है, क्योंकि कुछ के लिए तो वो करता है और कुछ के लिए नहीं करता है। Guys, is this making sense? समझ में आ रहा है? But I'm telling you the secret. पर मैं If आपको we रहस्य बता रहा can bring both of them together, अगर हम इन दोनों बातों को साथ में ले आए, oh man, you will walk as a victorious champion. आप एक जयवंत महारथी का जीवन जियोगे। Right? आमेन। So grace is God's part. अनुग्रह परमेश्वर का किया हुआ काम है, Faith is our part. विश्वास करना हमारा काम है। Faith is simply, okay, let me give you a definition of faith so that you मैं understand in this आपको context. विश्वास की परिभाषा बताता हूं ताकि आप इस मुद्दे में समझें। Faith is simply trusting in the goodness of God. That's what faith is. विश्वास करने का अर्थ है सरलता से परमेश्वर की भलाई पर भरोसा कर Amen? लेना। Faith is becoming like a little child and trusting that my heavenly Father is a good Father. विश्वास है एक छोटे बच्चे की तरह बनकर ये मान लेना कि मेरा स्वर्गीय पिता बहुत अच्छा है। Amen? Faith is not the hard part. Grace was the impossible part that God did. Faith is the easy part. विश्वास करना कठिन मुद्दा नहीं है, विश्वास करना तो आसान वाला हिस्सा है। जो कठिन वाला मुद्दा था वो अनुग्रह था जो परमेश्वर ने कर दिया। Grace part was what we could not have done. God did it for us, and now our part is, yes, Daddy, I believe, I receive. अनुग्रह करना वो असंभव था, असंभव हिस्सा था जो हम नहीं कर सकते थे, जो पिता ने कर दिया। अब हमारा काम है, हाँ पिता मैं ग्रहण करता हूँ। Amen. But what happens is many believers have a very limited understanding of the scripture. लेकिन क्योंकि अधिकतर विश्वासियों की बहुत सीमित समझ है वचन की, Because to us salvation, the word salvation has been taught as in going to heaven. क्योंकि हमारे लिए जो उद्धार शब्द है उसकी परिभाषा या उसका अर्थ ये बताया गया कि स्वर्ग जाना है। Are you saved? उद्धार पा लिया? Yes, I'm saved. हाँ मैं उद्धार पा चुका हूँ। Right? That is it. हाँ वो भी हिस्सा है, The full definition. वो संपूर्ण परिभाषा नहीं है उसकी। This word saved comes from the Greek word sozo. ये
ये जो शब्द है, ये जो वचन है उद्धार, यूनानी के सोजो शब्द से आता है। And let's see what it means. It has 7 different meanings. और इसका अर्थ देखते हैं, इसके 7 अलग अर्थ हैं। It means to save, इसका मतलब है बचाया जाना, deliver, छुटकारा पाना, make whole, संपूर्ण बना देना, preserve, बचा करके रखना, save from danger, खतरे से सुरक्षित रखना, loss, नुकसान से बचाना and destruction. और नाश से बचाना। Whoa. So that means it is not just talking about you going to heaven, it's also talking about God saving you from accidents. It's also talking about God saving you from destruction. It's also talking about God preserving your life on this earth. It's also talking about God bringing you into wholeness. तो मतलब सिर्फ स्वर्ग जाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये भी है कि परमेश्वर आपको नुकसान से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, किसी भी तरह के खतरे से संभाल के रखता है। Amen? Preservation. बचा करके रखना, Preservation. बचा करके When have रखना। we seen salvation as preservation? कब हमने उद्धार को बचा करके रखना देखा? That means 1,000 shall fall at my side and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. That's also salvation. इसका अर्थ ये हुआ कि 1000 मेरे बाईं और 10,000 मेरे दाईं ओर भी गिरेंगे तो भी मेरे करीब कोई नुकसान ना आएगा। ये बचा कर रखना ही तो है। There are so many testimonies wherein, Rahul is there and so many other testimonies. In a car, everybody died in a car crash. This guy comes out unharmed. What is that? Preservation. It's by grace through faith. एक और ऐसी बहुत सी गवाहियां हमारे बीच में भाई राहुल और बहुत से लोग हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में बैठा हर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो बच करके उस एक्सीडेंट से जिंदा बाहर आता है बिना नुकसान के, और ये परमेश्वर का बचा करके रखना है, उद्धार का जो हिस्सा है। Amen? Are you getting it, church? समझ रहे हैं? So that means salvation is not just me. When I die, salvation starts. Salvation is now. Now. इसका मतलब उद्धार तब नहीं जब मैं मरकर स्वर्ग जाता हूं, उद्धार अभी शुरू हो चुका है। Today is the day of salvation, Bible says. आज उद्धार का दिन है, बाइबल कहती है। So, brother, भाई, God has already healed you. परमेश्वर ने आपको पहले ही ठीक कर Yes, दिया। I know He will heal me. हाँ, मुझे पता है वो मुझे चंगा कर देगा। नहीं। I know one day God will heal me. मैं जानता हूँ एक दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। One meaning of salvation is what? It's also healing. When Jesus spoke to that woman, your faith has healed you. The Bible translators changed that word because that word was sozo. और उद्धार का एक अर्थ है चंगा करना या संपूर्ण कर देना। जब यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया तो बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, वहां पर सोजो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बाइबल ट्रांसलेटर्स ने उसको चंगा लिख दिया है, पर वो सोजो शब्द है। So if you have come here, तो अगर आप यहाँ आए you're going through any sickness, और आप किसी बीमारी any से torment, किसी भी सताव से जूझ रहे हैं, when is the day of salvation? कब है उद्धार का दिन? Now. Say now. बोले अब। You don't have to wait in the end when preacher will pray. You can receive salvation now. You can receive your deliverance now. You can receive your healing now. आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि कब प्रचारक प्रचार करने के बाद प्रार्थना करेगा मेरे लिए। आप अपने उद्धार को इस समय ग्रहण कर सकते हैं, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को इस समय ग्रहण कर सकते हैं। Amen? आमेन। Oh man, if you can see it, it will change the way we pray. अगर हम देख पाए तो हमारा प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। Amen? आमेन। So we can say that I am saved from sicknesses by grace through faith. तो हम ये कह सकते हैं कि हम बीमारियों से बचाए गए हैं अनुग्रह के कारण विश्वास करने के द्वारा। I am saved from accidents by grace through faith. मैं एक्सीडेंट्स से बचाया गया हूं अनुग्रह के कारण विश्वास करने के द्वारा। So, some people say, oh, Pastor, we are humans. कुछ लोग कहते हैं पास्टर हम तो इंसान हैं, So ये तो होगा ही. all this will happen, is bound to happen this, तो फिर होगा आपके साथ. and then it will happen with you. Why? क्यों? Because all the grace of God was there, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो था वहां पर, but you didn't trust His goodness that He can preserve you. That's why that grace लेकिन cannot save you. आपने उसकी भलाई पर विश्वास करना ना चुना, इसीलिए वो नहीं देखा। Are you guys with me?
Grace was there. The grace अनुग्रह of तो था। God to preserve every believer is here, but if you don't mix faith in it, that grace will be ineffective. हर एक विश्वासी को बचा कर रखने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवन के ऊपर, लेकिन जो कोई इसको ग्रहण नहीं करेगा उसके जीवन में वो प्रभावशाली नहीं होगा। Amen? And grace gets activated very simply when you start trusting that my Father is a good Father. और अनुग्रह प्रभावशाली या कार्यशील तब होता है जब आप विश्वास कर लो कि मेरा पिता बहुत अच्छा है, वो ये करना चाहता है मेरे I mean, जीवन में। like, believers have this weird doctrine. God didn't give it, brother, but He just allowed it. विश्वासियों की बहुत ही गड़बड़ाई हुई विचारधारा है परमेश्वर को लेकर के, बीमारी के किसी भी बात के लिए बोलते हैं कि परमेश्वर ने नहीं दिया लेकिन उसने अनुमति दी है He मेरे जीवन में allowed होने it. की। परमेश्वर ने अनुमति दी It's है। like there is a father, वो जैसा एक पिता and है his very small son is there on the road, and a lorry is coming in great speed. और जैसे एक बहुत छोटा बच्चा है उस पिता का, और वो उसका बच्चा जो है वो सड़क पर है और सामने से एक ट्रक आ रहा है बहुत तेज स्पीड पे, And he does nothing. और वो पिता कुछ नहीं करता है And the boy gets killed. और वो बच्चा मर जाता है उसमें। And the father says, और पिता कहता है I didn't kill him. मैंने नहीं मारा इसको, I just allowed it. मैंने सिर्फ अनुमति दी थी। It's as good as him killing him. तो उतना ही अच्छा है ये कहना कि पिता ने मारा है। Stop saying that your sicknesses are allowed by God for God's sake. ये कहना बंद कर दो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुमति दी है बीमारी की या किसी भी नुकसान की। God allowed me to put into trouble. परमेश्वर ने अनुमति दी कि मेरा जीवन समस्याओं में जाए। I know some of you will be offended because मुझे- it's a very famous teaching in church right now. मुझे And पता when है- we speak the truth will offend you before it will set you free. मुझे पता है आप में से कुछ लोग नाराज होंगे ये शिक्षा सुन करके, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है कलीसियाओं में, लेकिन जब आप नाराज होंगे तब ही सत्य आपको आजाद कर पाएगा। Amen? The Bible says, do not be deceived. Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor ji, do not be deceived. बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। अपने पड़ोसी को कहो पड़ोसी जी धोखा मत खाओ। There are many deceived believers, not just deceived believers, there are many deceived pastors preaching a deceived message. बहुत सारे धोखा खाए हुए विश्वासी हैं, विश्वासी ही नहीं, बहुत सारे धोखा खाए हुए पास्टर हैं जो धोखा देने वाला संदेश प्रचार कर रहे हैं। Amen? And the people are like, why are we in bondage? Because you've been hearing a wrong message for years. और लोग कह रहे हैं कि हमारा जीवन बंधनों में क्यों है, क्योंकि आप कई सालों से बंधनों में डालने वाला संदेश सुन रहे हो। As truth sets you free, lie binds you. जैसे सत्य आपको आजाद करता है, झूठ आपको बंधी बनाता है। Amen. Do not be deceived. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. धोखा मत खाओ, क्योंकि हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ही आता है। Cancer is not good, so your heavenly Father cannot give you cancer. कैंसर अच्छा नहीं है, इसलिए आपका स्वर्गीय पिता आपको वो नहीं दे सकता। Sickness is not good, diseases are not good, poverty is not good, depression is not good, anxiety is not good, so nothing evil comes from your heavenly Father. बीमारियां अच्छी नहीं है, रोग अच्छे नहीं है, तनाव अच्छे नहीं है, सताव अच्छे नहीं है, इसलिए उसमें से कुछ भी आपके स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं आता, क्योंकि उसकी ओर से केवल अच्छी चीजें ही आती हैं। Amen. Look. Just pay close attention. Look at the way devil has deceived us. और करीबी से परखिए कि कैसे शैतान ने हमें धोखा दिया है। When God is giving us a free gift, we don't receive it. But when Satan gives us sicknesses, we receive it as a gift from God. जब परमेश्वर एक मुफ्त का तोहफा हमें देना चाहता है अनुग्रह के द्वारा, हम उसको नहीं ग्रहण करते, लेकिन जब शैतान नुकसान के लिए कुछ देना चाहता है, रोग बीमारी, तो उसको लोग परमेश्वर की ओर से तोहफे की तरह पकड़ लेते हैं। Believers cannot believe in the goodness of God, but they can quickly believe a message that God gives you sicknesses, diseases and puts you in problems. विश्वासियों को कठिनाई होती है परमेश्वर की अच्छाई पर विश्वास करने में, लेकिन वो जल्दी से ये संदेश ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, वो नुकसान करता है। So they prevent their heavenly Father to bless them. और ऐसा करके वो अपने स्वर्गीय पिता को सीमित कर देते हैं कि वो उनको आशीष ना दे पाए। Are you getting it? Because we are not just saved by grace. If it was just grace alone, I would have loved it. क्योंकि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए नहीं जाते केवल, क्योंकि अगर केवल अनुग्रह ही से सब कुछ होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। We wouldn't be needing these church services. हमें कलीसियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती।
Are you getting it? Entire world would have been saved right now. पूरी दुनिया इस समय बचाई जा चुकी होती, But God cannot do on this earth without partnering with a man. That's the problem. लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकता मनुष्य के साथ सहभागी हुए बिना। Amen. Salvation is not a prison. उद्धार एक जेल नहीं है, It's a gift. एक तोहफा है। Has anyone here rejected gifts? Come on. क्या Show यहाँ me your पर hand. कोई है जिसने अपनी जिंदगी में किसी तोहफे के लिए No? मना किया हो कि मुझे नहीं Come चाहिए? on, man. When your nana nani dada dadi came and they tried to put जब you नाना नानी you'll say, दादा दादी आके टॉफी के लिए आइसक्रीम के लिए पैसे दे रहे नहीं थे, नहीं नहीं सबको नहीं, मम्मी पापा ने आंखें इसकी क्या दिखाई, जरूरत है? नहीं and then- नहीं, And ये by ये नहीं चाहिए, पीछे से दे दो, इसकी क्या जरूरत है? Right? है ना? And many times और कई बार maybe they'll put it back in the pocket and they'll say, oh man, कई बार शायद उन्होंने जेब में वापस रख लिए होंगे, आपने बहुत ज्यादा मना कर दिया एक्टिंग करते हुए, तो उन्होंने it कहा, was a gift, ये तो तोहफा था, but you became super religious. जब आप बहुत ज्यादा घणे आत्मिक बन गए। Amen? You're like, हम स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमानी लोग अनुग्रह नहीं पाते हैं. People with very high self-esteem don't really receive the grace of God. Because I'm a self-made man, brother. क्योंकि मैंने खुद के जीवन को बनाया है। You will go to hell being self-made. न चले जाओगे इस चक्कर में कि खुद को You'll बनाया। have to humble yourself. अपने आप को नम्र करना सीखो। Learn to receive gift. तोहफे ग्रहण करना सीखो। I'm telling you, God had to deal it when I came into ministry, and somebody will come to me and they'll say, Pastor, you know, this is what God has put me on to bless the ministry. I'll say, परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा जब मैंने सेवकाई शुरू की और कोई आके बोलता कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है सेवकाई के लिए करने के लिए, तो मैं उनको मना कर देता। and God had to rebuke me. परमेश्वर को मुझे डांटना He पड़ा। said, in your room, you're confessing scriptures that I'm going to provide, and when I provide, you reject it. उसने कहा अपने कमरे में तू घोषणाएं करता है कि परमेश्वर तू मेरे लिए सारी जरूरतें पूरे करेगा, और जब मैं करता हूं तो तू मना कर देता है। I mean, like when you buy a gift for your kids, do they do that? जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेते हैं क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं, पापा नहीं. Because they are your kids. But if you try to do it with your servant, they say, अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी दीदी. Slaves cannot receive a gift. Come on, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, जो आप उनके लिए लेंगे उसको मना नहीं करेंगे। Slaves cannot receive gift. The Bible says and he was talking to these Pharisees, he was like, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father. क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को मना नहीं करेंगे, लेकिन जो दास हैं वो मना करते हैं। जब आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और यीशु फरीसियों से कहता है, जब तुम दुष्ट होते हुए अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानते हो, तो कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भला है वो ना करेगा तुम्हारे लिए। Stop trying to earn what your Father has freely given you. कृपया करके कमाने का प्रयास बंद कर दें वो पाने के लिए जो आपके स्वर्गीय पिता ने मुफ्त में आपको दे दिया है। Amen? आमीन। Some people say, कुछ लोग कहते हैं faith moves God. कुछ लोग कहते हैं विश्वास परमेश्वर को हिला देता है। God is not stuck. परमेश्वर फंसा नहीं हुआ कहीं पे। You are stuck in your situation. आप फंसे हैं अपनी परिस्थिति में। Faith moves you. विश्वास आपको हिलाता है उससे। Faith moves you. विश्वास आपको हिला देता है। Not God. परमेश्वर को नहीं हिलाता। He moved 2000 years ago by sending his own son. वो 2000 साल पहले अपने सिंहासन से हिल गया, अपने बेटे को भेज दिया। Amen? So उसको मत हिलाओ, खुद को हिलाओ. So don't move him, move yourself. Faith will move you. विश्वास आपको हिला देगा आपके स्थान से। Amen, guys. Are we learning something? सीख रहे हैं हम? Yeah. It's very important that we understand this, बहुत जरूरी है कि हम ये सीखें। right? So understand this, that whatever you will need in your life, God has already provided by grace. ये सीख लीजिए, जान लीजिए कि जो कुछ आपको आपके जीवन में कभी भी जरूरत पड़ेगी परमेश्वर ने पहले ही आजादी से अनुग्रह से दे दिया। You will not have to convince him to give something to you. उसमें से कुछ भी पाने के लिए आपको परमेश्वर को राजी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। In salvation, there is everything. उद्धार में सब कुछ शामिल है जो आपको चाहिए। You know, I was hearing this story of a family, and they were going. They were very poor, but then they were moving to another country. So all the money that they had, they bought these cruise ships tickets. मैं एक परिवार की कहानी सुन रहा था। वो बहुत गरीब थे, इसलिए वो एक दूसरे देश में जाकर के अच्छा रहन सहन के लिए उम्मीद लगाकर सब कुछ बेचकर एक क्रूज शिप की टिकट खरीदते हैं। You know why? There are many
preachers and there are many believers today, they say, we don't believe in health and wealth gospel. It's pharisaical religious mindset. बहुत- They think they are more superior because we only live for heaven. बहुत सारे विश्वासी और प्रचारक हैं जो कहते हैं कि हम ये स्वास्थ्य और समृद्धि वाला जो सुसमाचार है उसको नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि उसको ठुकरा करके वो ज़्यादा आत्मिक दिखाई देंगे परमेश्वर को. Right? There are people think being poor is being spiritual. It's a lie from pit of hell. क्योंकि कई लोग हैं जिनको ये गलती लगती है, ये गलत फहमी है कि गरीब होना आत्मिक होना है. ये झूठ है, नरक से Poverty निकला हुआ. is a curse in the Bible. बाइबल साफ बताती है कि गरीबी एक श्राप है. Sickness is a curse in the Bible. बीमारी एक श्राप है बाइबल के मुताबिक. And the Bible says in Galatians 3:13 that Jesus became curse for us. और गलातियों 3:13 बाइबल कह रही है कि यीशु हमारे लिए श्राप बन गया. Amen? It's, guys, I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ आप समझें. Some people think it's being very religious. कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि ऐसा करना तो बहुत आत्मिक है. So this family, तो ये परिवार, you know, they only had the money to buy tickets. सिर्फ उनके पास उतना ही पैसा था कि वो टिकट And खरीदे. it was a 3 days journey. और 3 दिन लंबी यात्रा थी. I'm not very sure, but I think they were going to South Africa. शायद वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे. And every time his kids would say, Daddy, we are hungry. और जब कभी उस व्यक्ति के बच्चे कहते हैं कि पापा भूख लग रही है, And they will stand on the deck and seeing these people eating delicious food. और वो डेक पर खड़े होकर अंदर जो भोजन चल रहा था बड़े हॉल में वो देखते, And they would desire that, but they had no money. और चाहते कि वो जाकर खाएं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए. One day, एक दिन 2 बीता, day, 2 दिन Third बीत गए. day. तीसरे दिन the captain of the ship was passing by. जो शिप का कप्तान था वो वहां से निकल रहा था. And he spoke to the dad. He said, hey, why don't I ever see your family, eating food with everyone? और उस कप्तान ने उस पिता से कहा, उस परिवार के, कि क्यों मैंने आपके परिवार को अभी तक अंदर नहीं देखा अभी तक. He said, Captain, we don't have money to buy food. उसने कहा, कप्तान साहब हमारे पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के He लिए. said, oh, you foolish man, in your ticket, every meal was included. उसने कहा, बेवकूफ आदमी, तुम्हारी टिकट में सारा खाना का पैसा भी लगा हुआ था. When God gave you salvation, we saw the 7 meaning. He gave you healing, He gave you wholeness, He gave you prosperity, He gave you peace, He gave you joy. Everything that you do is included in the package. जब परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया तो उस उद्धार में हमने देखा वो सारी बातें, वो सातों बातें हैं. आपको बचा लेना, आपको सुरक्षित रखना, आपको छुटकारा देना, आपको संपूर्ण बनाना, शांति देना, समृद्धि देना, जो कुछ उससे संबंध रखता है वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको उसके साथ दिया. Amen? It's false humility when you are trying to reject what your Father freely wants to give you. ये ढोंग की हुई नम्रता है जब हम ठुकराते हैं जो हमारा पिता हमें मुफ्त में देता है. Right? And false humility doesn't please God. और In वो जो- fact, He gets upset with it. और वो जो ढोंग की गई नम्रता है उससे परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं होता बल्कि नाराज होता है. Don't come to Jesus because He heals. We don't come to Jesus for healing. यीशु के पास हम इसलिए नहीं आते कि वो चंगा करता है. And then they go to doctors. और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं. Are you seeing the hypocrisy? आप ढोंग देख रहे हैं. भाइयों और बहनों, hypocrisy की भी सीमा होती है. Right? Isn't that hypocrisy that so many Christians will say, we don't believe that, healing, healing is not the will of God. And then they'll run to doctors. और कई विश्वासी कहते हैं कि चंगा करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, फिर वो डॉक्टर के पास भागते हैं. Well, we never asked Jesus to heal us. हमने यीशु को नहीं बोला कि हमें चंगा करो. Before you and me were ever even born, 2,000 years ago, the Bible says He Himself, say Himself. That means nobody convinced Him. He Himself bore our sicknesses and carried our pains. And the Bible says by His stripes we were healed. आपके और मेरे जन्म लेने से कई दशकों पहले, कई सदियों पहले, 2000 साल पहले यीशु ने खुद ही, बाइबल कहती है, उसने खुद ही हमारे रोग और बीमारियां अपने ऊपर ले ली और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं. Amen? Think about that. 1/3 of Jesus was healing. 1/3 was healing and 1/3 was delivering people.
So 2/3 of his ministry was setting people free and healing them. जब यीशु पृथ्वी पर चल फिर रहा था तो उसकी जो सेवकाई थी उसका 1/3 काम था बीमारों को चंगा करना और 1/3 काम था दुष्ट आत्माओं को निकालना, लोगों को छुटकारा देना। 2/3 उसकी सेवकाई तो ये थी पृथ्वी पर। We think it's selfish when we go to Jesus for our healing. It's not selfish. और कई लोग सोचते हैं कि मैं इतना मतलबी कैसे हूं कि मैं यीशु से अपनी चंगाई मांगू। मतलबी होना नहीं है। Are you guys with me? You are receiving what your Father has already provided. He has extended His hands and you are just receiving it. आप वो ग्रहण कर रहे हो जो आपका पिता आपको पहले ही दे चुका है, आप बस वो ले रहे हो जो उसने दिया। Right? That's why faith rests. इसलिए विश्वास विश्राम करता है। Let me say it this way. Faith rests in what grace has provided. विश्वास उस बात में विश्राम करता है जो परमेश्वर के अनुग्रह ने दे दिया है। Amen? And the picture is in Eden wherein God provided everything for Adam first. That was grace. और ये जो तस्वीर है हम अदन की वाटिका में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसके लिए सब कुछ बना के दे दिया। Everything was provided सब कुछ दे दिया था in Eden. अदन की वाटिका में। And God made him on 6th day. फिर 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। And He told, hey, you have to manage this garden. और बोला सुनो, ये जो वाटिका मैंने बनाई है इसकी देखरेख करनी है। And then he was about to enter with God on 7th day, and from rest he was supposed to walk in dominion. और फिर परमेश्वर के साथ उसको 7वें दिन जो विश्राम का दिन है उसमें प्रवेश करना था और विश्राम से उसको राज्य और प्रभुता करनी थी। Amen? आमेन। We walk in dominion from the place of rest. हम जय में, राज्य प्रभुता में, विश्राम के स्थान से चलते फिरते हैं। Oh, glory. Amen? So the thing is, let's put John 1:12. यूहन्ना 1 उसका 12 Are you alive? जीवित हैं? Is your attention still here? आपका ध्यान Or यहाँ are है? you thinking about chole bhature? या आप छोले भटूरे के After बारे में this, सोच रहे हैं? rajma chawal. राजमा चावल खाएंगे बाद में। Come on, say this out me. Say, body, मेरे साथ बोले, hear the word of the Lord. वचन को सुन। Okay? Yeah, your body won't let you hear the word of the नहीं तो Lord. शरीर सुनने नहीं देगा वचन। Your body will say, garam garam bhature. Okay. But as many as received him. जितनों ने उसको ग्रहण किया। I want you to read this scripture slowly so that you मैं चाहता हूँ understand. आप धीरे से पढ़ें यार। But as many as received him. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। That means it was not God who decided how many, but as many as received him. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने गिनती गिनकर नहीं रखा कितने करेंगे, जितनों ने चाहा उन्होंने कर लिया। It's like God has prepared this banqueting feast. वो ऐसा है कि परमेश्वर ने एक महाभोज तैयार किया है। And He's like, come, as many as want to come. और Come, वो- I'm giving you this invitation. और वो सबको न्योता देता है, कहता है आ जाओ, जितनों को खाना है आ जाओ। But somebody says, पर and कोई somebody कहता is है- very sick. I mean, like somebody is very hungry and he has not. He's like, हम free का नहीं खाते. पर कोई है जो बहुत भूखा है और कहता है आई डोंट ईट व्हाट इज गिवन फॉर फ्री। You know, when you talk like that, आपको पता है जब आप ऐसे बात करते हैं, when you don't see God as your father. जब आप पिता को जब आप परमेश्वर को अपना पिता करके नहीं देखते। I mean, like, I never said to my dad, मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं free का नहीं खाता. मैंने कभी अपने पापा से ऐसा नहीं कहा कि आई विल नॉट ईट फूड इन दिस हाउस बिकॉज आई डोंट ईट व्हाट्स फॉर फ्री। Healing, that's why Jesus, hear carefully, healing, Jesus said, is the children's bread. इसीलिए यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। And there are some stupid children who और कुछ- kick off that bread because they think they are very ultra religious. और कुछ मूर्ख बच्चे हैं जो उस रोटी को लात मार देते हैं क्योंकि वो घणे आत्मिक हैं। I don't want to come to Jesus because of healing. मैं यीशु के पास चंगाई के लिए नहीं आना चाहता। No, you already came to Jesus, you fool, now you receive. Eat. Eat नहीं तुम पहले ही Eat यीशु के पास आ चुके the हो, मूर्ख, bread अब that ग्रहण करो। Jesus has for you. वो रोटी जो यीशु ने मुफ्त में रख दी तुम्हारे सामने। Amen? If you're not happy with this message, you're a Pharisee. अगर इस संदेश से आप प्रसन्न नहीं है तो इसलिए क्योंकि आप फरीसी हैं। If this message is offending you, you are that kid. अगर ये संदेश आपको नाराज कर रहा है तो आप ही वो बच्चे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। Turn to your neighbor and say, neighbor,
पड़ोसी को देखे, पड़ोसी। Don't reject the bread that your father has for you. जो रोटी आपके पिता ने आपको दी है उसको ठुकराओ मत। In fact, you know what do kids do? पता है बच्चे क्या करते हैं? Kids demand bread. बच्चे हक से मांगते हैं। They don't beg, they demand. बच्चे भीख नहीं मांगते, हक से बोलते हैं खाने को दो। अरे मम्मी यार इतनी देर हो गई है, भूख लग रही है, कब दोगी रोटी हमें? It's been so long, I've been waiting for food. When will you give me food, mama? Is that true or not? है कि नहीं है? Kids demand. बच्चे डिमांड करते हैं And हक that से। word ask. See, many people, I don't know how, when they read word ask, they read it as beg. और पता नहीं कैसे जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो जो वो लिखा है कि जब मांगो तो तुम्हें मिलेगा, वो मांगो शब्द को भीख मांगने की तरह पढ़ते हैं। That word ask, if you see in the original manuscript, it means demand. जब आप मूल भाषा में देखेंगे वो मांगो शब्द लिखा है हक से So मांग रखना। you can demand, you can say, Father, तो आप कह सकते हैं पापा I demand my healing because Jesus Christ bore every sickness, every disease, every pain on his body on the cross. मैं हक से अपनी चंगाई मांगता हूं क्योंकि यीशु ने मेरी चंगाई के लिए, मेरे सारे रोग और बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए अपनी पीठ पर, क्रूस पर उन सबको ले लिया। Healing is children's bread. चंगाई बच्चों की रोटी है And no kid will have to earn for their bread. और किसी बच्चे को अपनी रोटी कमानी नहीं पड़ेगी। Amen? Jesus didn't say healing is the children's ice cream. यीशु ने ये नहीं कहा कि चंगाई बच्चों की आइसक्रीम है। If it was that, then that means sometimes you're going to get it, sometimes you're not going to get it. अगर ऐसा होता तो इसका अर्थ होता कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। Right? Because our kids cannot demand ice cream. I want ice cream now. I'll say no. क्योंकि हमारे बच्चे आइसक्रीम डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, हम बोलेंगे नहीं मिलेगी। Guys. Yeah? Are you understanding? Some people are like, समझ? I think maybe you're in trance right now. You're seeing a vision. Or I don't know what has happened. कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सपनों में। Some people are like, oh yeah, some people are thinking you're ice cream. Cornetto. Okay. Let me say it again. दोबारा कहता हूँ, Healing is children's bread. चंगाई बच्चों की रोटी है। Amen. It's your father's good pleasure so that his kids will walk in healing, his kids will walk in prosperity, his kids will walk in health. इसमें आपके पिता को मजा आता है जब उसके बच्चे अच्छे स्वास्थ्य में जीते हैं, अच्छे हालात में जीते हैं, अच्छे समृद्धि में जीते हैं। Amen. See, that's the problem. The simplest message that many believers have missed is they don't see God as their loving father. जो सबसे साधारण संदेश था उसको कई विश्वासी लोग नहीं जानते कि स्वर्गीय पिता आपका पिता है। They see God as a strict taskmaster. वो परमेश्वर को एक सख्त काम कराने वाले मालिक की तरह देखते हैं। So they receive their healing as a wage. God, अब तो मैंने 7 दिन का उपवास कर दिया, अब तो चंगा कर दो। तो वो अपनी चंगाई को तनख्वाह की तरह पाने की कोशिश करते हैं। Lord, I have fasted for 7 days. You owe me my healing. And the more you do that, the more you go away from your healing. और जितना ऐसा करते हैं उतना अपनी चंगाई से दूर जाते हैं। You know why? Let's see this. Ephesians 2:9. पता है क्यों? देखते हैं इफिसियों One 2:9। thing that God will never allow is for you to boast before Him. एक बात जिसकी अनुमति परमेश्वर कभी नहीं देगा वो है अपने कामों पर डींगे हाँकने की। I got healed because I did that. मैं इसीलिए चंगा हुआ क्योंकि मैंने ऐसा किया। I fasted and brought a revival in Delhi. मैंने 40 दिन उपवास किया और दिल्ली में बेदारी ले आया मैं। No, you got healed because Jesus bore your sicknesses on His body 2000 years ago. नहीं, आप इसलिए चंगे हुए क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए आपके लिए 2000 साल पहले। It's not about what you have done. It's about what Jesus Christ has done. आप क्या कर सकते हो वो मुद्दा है ही नहीं है, मुद्दा है यीशु ने जो कर दिया है। Amen. And faith is not about you. Faith is trusting what Jesus Christ has done. और विश्वास में आप मुद्दा नहीं है, विश्वास में मुद्दा है जो यीशु ने कर दिया उसको मान लेना। Not salvation is not of works, lest any man may boast. उद्धार कामों के कारण आपको नहीं मिला, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Right? I don't know if you have met some people. I have met some people. पता नहीं आप ऐसे लोगों से मिले या नहीं, मैं मिला हूँ। They'll say,
I have done this. वो बोलेंगे मैंने ऐसा And I raised so many people. मैंने And I लोगों को did ये- this. मैंने And ऐसा I किया, did that. मैंने And ऐसा I किया, did मैंने that. वो And किया, I, and I, मैंने and ये, I. मैंने- And then मैंने- say, मैंने, in फिर the बोले- end they say, फिर आखिर में बोलेंगे But all the glory belongs to God. लेकिन सारी महिमा प्रभु को। And I'm thinking, there wasn't any glory left to give to God because you took all of it. और मैं कहता हूँ महिमा बची कहाँ थी परमेश्वर को देने के लिए, सारी तो आपने ले ली। Amen. You know, but